بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے صفت اور ان کے اقسام۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اردو گرامر میں ایک لفظ ہے صفت اور ایک ہے موصوف۔ آج ہم سمجھیں گے کہ صفت کسے کہتے ہیں اور موصوف کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے یا کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی کو جو لفظ ظاہر کرے، واضح کرے، اسی کو ہم گرامر کی زبان میں صفت کہتے ہیں۔ صفت کوئی فعل نہیں ہوتا ہے، صفت کوئی حرف نہیں ہوتا ہے، صفت ایک مکمل لفظ ہوتا ہے، وہ بھی خود ایک اسم ہوا کرتی ہے۔ میں آج اسی کو سمجھیں گے کہ صفت کیا ہے۔ صفت کی 5 قسمیں: صفت ذاتی، صفت مقداری، صفت نسبتی، صفت ضمیری، صفت عددی۔ آج ہم ان 5 کو سمجھیں گے، اس 5 صفت کو سمجھیں گے۔ چلیے تو میں شروع کرتا ہوں۔ یہ ہو گیا صفت کی اقسام۔ صفت کی 5 قسموں کو میں لکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت ضمیری، صفت عددی، یہ صفت کی مکمل 5 قسمیں ہو گئی۔ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت ضمیری، صفت عددی، اور میں آپ کو ایک بتا دوں، ایک ہوتے ہیں ایک اور صفت ہے، اس صفت کو ہم کہتے ہیں صفت مقداری۔ اس صفت کو میں آخری میں بتاؤں گا۔ حقیقتاً آپ مکمل 5 صفت کو یہی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، صفت ذاتی کا 2 نام ہے۔ ایک تو آپ اسے صفت ذاتی کے نام سے جانتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام ہے صفت تفصیلی۔ صفت ذاتی کو ہی بعض دفعہ صفت تفصیلی کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ صفت ذاتی کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی ذات کے ظاہری حصے کو یا باطنی حصے کو، اندرونی حصے کو یا بیرونی حصے کو جس لفظ کے ذریعہ واضح کیا جائے، اسی لفظ کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں لکھتے ہیں، کتاب اچھی ہے، لڑکا بڑا ہے۔ یہاں میں نے 2 مثالیں لکھ دی۔ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب ایک لفظ ہو گیا اور یہ اچھی ایک لفظ ہو گئی۔ کتاب کی ذات ہے جو جسم و جثہ کے اعتبار سے کتاب ہے، چند صفحات پر جو وہ کتاب بنی ہوئی ہے، اس کتاب کی خوبصورتی کی بھی بات کی جا سکتی ہے اسی اچھائی سے، یعنی کتاب اچھی ہے۔ اور کتاب کے اندر جو مضمون لکھے ہوئے ہیں، اس مضمون کے طرف بھی اچھی کے ذریعے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ اسی کو ہم کہتے ہیں اندرونی حصے کو ظاہر کرے یا بیرونی حصے، اندرونی حصے کو ظاہر کرے یا ظاہری حصے کو ظاہر کرے۔ یا اسی طرح ہم کہتے ہیں لڑکا بڑا ہے۔ لڑکا کس اعتبار سے بڑا ہے؟ قد کے اعتبار سے بڑا ہے، دل کے اعتبار سے بڑا ہے، کس اعتبار سے بڑا ہے؟ تو لڑکا کے اندر جو ایک صفت پائی جا رہی ہے بڑے ہونے کی، عمر کے حساب سے ہو سکتا ہے، لمبائی کے بھی حساب سے ہو سکتا ہے، دل و دماغ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزوں میں داخل ہو سکتا ہے۔
इसलिए हम इसे कहते हैं सिफत जाती को। इसलिए हम इसकी तारीफ करते हैं मौसूफ के जाहिरी हिस्से की भी दलालत करे, वजाहत करे, या मौसूफ के अंदरूनी हिस्से में जो वजाहत पाई जा रही है, जो अच्छाइयां पाई जा रही है या बाज दफा बुराइयां पाई जाती है, उन दोनों चीजों को इस लफ्ज के जरिए वाज़े किया जाता है। तो अब हम इसमें समझते हैं कि इसमें एक लफ्ज मौजू बनता है, दूसरा सिफत। तो पहले वाले लफ्ज को हम मौजू कहते हैं, दूसरे को हमने सिफत का नाम दिया। जिस चीज की सिफत बयान की जाए, यानी जिस चीज की अच्छाई या बुराई को जाहिर किया जाए, उसी लफ्ज को हम मौसूफ कहते हैं। और जिस लफ्ज के जरिए अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए, उसी को हम सिफत कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है सिफत निस्बती। सिफत निस्बती को भी हम समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आप सिफत जाती को समझ गए होंगे। जी, अब हम शुरू करते हैं सिफत निस्बती। सिफत निस्बती क्या चीज है? देखिए, किसी भी चीज का या किसी भी जात का किसी जगह के तरफ या किसी चीज के साथ निस्बत जोड़ देना, उसी को हम कहते हैं सिफत निस्बती। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कश्मीरी शाल। एक लफ्ज है इसमें शाल, चादर, और एक लफ्ज मैंने लाया है इसमें कश्मीर। एक शाल है, वो कहां बनाया गया है, वो चादर कहां से आई है, इस चादर के बोल करके ये लफ्ज कश्मीर ला करके हम इस चादर की निस्बत को बयान कर रहे हैं कि इस चादर की निस्बत किस जगह से जुड़ी हुई है। तो इस चादर की निस्बत कश्मीर से जुड़ी हुई है। इसी तरह हम एक बादाम को कहते हैं काबुली। एक बादाम है काबुली बादाम। बादाम तो मुझे समझ में आया, और बादाम की बहुत सारी किस्में हैं। कौन से बादाम? तो एक बादाम जो मशहूर और मारूफ है, वो काबुल से आने वाले बादाम को हम काबुल के तरफ मंसूब कर देते हैं। इसलिए हम इस बादाम में जो निस्बत कर रहे हैं, इस बादाम की निस्बत हम काबुल के तरफ कर रहे हैं, यही काबुल से ये बादाम मशहूर हुआ है। इसलिए हम इस सिफत को सिफत निस्बती कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत से लोग देवबंद से फरागत पाते हैं, मज़ाहिर से फरागत पाते हैं, या बाज दफा लोग अपने खानदानों के तरफ निस्बत रखते हैं। उन तमाम चीजों को आप इसी सिफत में दाखिल करेंगे। मिसाल के तौर पे आप कासमी कहते हैं, इसकी निस्बत इमाम कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर के मिलती है, यानी उन्हीं के नाम के तरफ आप अपनी निस्बत करते हैं। इन जैसी सिफत को सिफत निस्बती कहते हैं। इसी तरह आप किसी शहर से रहने वाले हो और उस शहर के तरफ अपनी निस्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं दरभंगवी। आप खुद को या किसी चीज को, मान लीजिए ये किताब है, ये किताब कहां से लाए? ये किताब दरभंगवी है। ये चावल कहां से लाए? ये चावल दरभंगवी है। या किसी भी चीज के तरफ या किसी जात के तरफ किसी शहर से या किसी चीज से निस्बत को जोड़ देने को सिफत निस्बती कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपने सिफत जाती और सिफत निस्बती को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम शुरू करते हैं सिफत ज़मीरी को। दोस्तों, सिफत ज़मीरी क्या चीज है? किसी भी चीज को आप ज़मीर के साथ उसकी निस्बत को जोड़ दें, उस चीज की वजाहत आप ज़मीर के जरिया करें। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ये बोर्ड मेरा है, इसमें ये बोर्ड जो हो गया, ये मौसूफ बन गया, आपका ये बोर्ड मौसूफ बना। लेकिन इसमें हम एक ज़मीर के जरिया खुद की तरफ मंसूब किया है। उसमें जो ये ज़मीर मेरा जो आया है, यही मेरा इसमें सिफत ज़मीरी कहलाया। क्यों ज़मीरी कहलाया? कि इसमें जो खुद यानी मौसूफ के तरफ इस चीज की निस्बत दी गई है,
वो ज़मीर के जरिए दी गई है, इसलिए हम इसे सिफत ज़मीरी के नाम से कहते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी चीजों में कह सकती हैं मेरी वालिदा, इसमें भी आपने ज़मीर का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये भी सिफत ज़मीरी कहलाएगी। इसी तरह आप कहते हैं मेरी किताब, मेरा कलम, ये सारे चीज क्या कहलाते हैं? इसमें ज़मीर के जरिए मौसूफ वाज़े और मौसूफ के तरफ जो चीजों का जो इशारा हो रहा है उसकी निस्बत जुड़ रही है मौसूफ के तरफ, वो ज़मीरों के जरिए से जुड़ती है, इसलिए हम इन चीजों को क्या कहते हैं? सिफत ज़मीरी। अब एक चीज है सिफत आददी। सिफत आददी को हम समझते हैं। सिफत आददी थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। इसमें दो किस्म बनेंगे, इन तमाम में एक एक किस्म की सिफत जाती, जात के तरफ किसी चीज की निस्बत कर दी जाए तो सिफत जाती, किसी चीज की तरफ या किसी शहर के तरफ निस्बत कर दी जाए तो सिफत निस्बती, ज़मीर के जरिए की जाए तो सिफत ज़मीरी। सिफत आददी, सिफत आददी की दो किस्म बनेंगी। आदद के माने आते हैं गिनती करना, शुमार करना। जिन चीजों को आप गिन सकते हैं और गिनती में बांध करके उसको वाजे करते हैं, उन चीजों को आप कहेंगे सिफत आददी। और फिर सिफत आददी में वो क्या है? सिफत आददी है या सिफत गैर, सिफत मुअय्यन है या सिफत गैर मुअय्यन है। इस सिफत को, सिफत आददी को आप मुअय्यन यानी मुतअय्यन तादाद या गैर मुतअय्यन यानी जिसकी तादाद मुतअय्यन नहीं हो, इन दोनों नामों से आप इसे जान सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा 5 केले, ये इस केले की सिफत बनी है, ये 5। इस 5 के जरिए ये मौसूफ यानी केले की वजाहत हुई है। केले कितने हैं तो केले 5 है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 10 है। बच्चे कितने हैं? बच्चे कुछ है। अब इसमें देख रहे हैं कुछ में तो गिनती के अल्फाज आएंगे, 5, 7, 10, 1000, 2000, 10 लाख, 15 लाख, इन तरह की गिनती आएगी, लेकिन कुछ में गिनती नहीं आएगी। उसकी जगह एक मुहम्मल लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है, यानी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है जिससे आपको तादाद मालूम नहीं होगी, इसलिए हम इसे गैर मुअय्यन के नाम से जानते हैं। गैर मुअय्यन यानी जिसकी तादाद या गिनती मालूम न हो। अब इस सिफत को यानी 5 केले को जो हम नाम देते हैं सिफत मुअय्यन, अब हम यही लिख देते हैं कुछ बच्चे, चंद किताबें। अब इसमें देखिए मैंने ऊपर तो वाज़ेह कर दिया 5 केले, इसी तरह मैं किसी चीज में और कह दूं 10 कमरे, 3 मदारिस, 10 लोग, इसमें तो 10, 5, 7, ये आप देख रहे हैं कि ये एक सिफत है जो जिसकी तादाद हमें मालूम चल रही है कि ये चीज कितनी है, 5 है, 7 है, 2 है। लेकिन इसमें आपसे आज जब पूछा जाएगा कुछ बच्चे, अब आपको कितनी तादाद मुतय्यन मालूम हो रही है? कुछ भी मालूम नहीं हो रही है। बस इसमें इतनी ही बात वाज़ेह हो रही है कि इसमें कुछ बच्चे में 3 से लेकर के 9 के बीच तक की कोई तादाद है। अब आपको मालूम है, अब जैसे हम कहते हैं चंद किताबें, तो इस चंद किताबें का मतलब ये नहीं है कि ढेर सारी किताबें, ऐसा नहीं होता। चंद का मतलब ये होता है 3 से लेकर के 9 के बीच तक की कोई गिनती है, लेकिन हकीकत या सही तौर पर मालूम नहीं है। अब मान लीजिए यहां चंद किताबें लिखी हुई है, अगर माहिर ग्रामर वाले से पूछेंगे चंद किताबें का क्या मतलब है, तो वो वाज़ेह तौर पर बता देंगे आपको 3 से लेकर के 9 किताबों के बीच की तादाद बताई जा रही है। लेकिन फिर भी इसमें तादाद मुतय्यन तौर पर मालूम नहीं हुए, इसलिए हम इसका नाम गैर मुअय्यन रखते हैं। मैं साइड में लिख दे रहा हूं चंद किताबें, बाज तलबा, बाज लोग, बाज औरतें जा रही है, तो बाज वो आ रहा है ये भी एक सिफत अददी है, ये भी बाज है, चंद है, कुछ है, ये सब भी सिफत आददी है। बाज भी आदद ही को बतलाने के लिए आया, लेकिन कितनी आदद है इस चीज को वाज़ेह नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसे गैर मुअय्यन कह देते हैं।
5 है, 7 है, 100 है, 200 है, ये भी आदद ही को बताने के लिए आया, इसलिए हम इसे सिफत आददी तो मानते हैं, सिफत आददी कहते हैं, और सिफत आददी में हम इसे मुअय्यन मानते हैं। यानी इसके जरिया 5, 7 के जरिया हमें उस चीज की हकीकी गिनती मालूम हो रही है, और इन चीजों के जरिए हमें हकीकी गिनती मालूम नहीं होती है, इसलिए हम इसे गैर मुअय्यन कहते हैं। इनके बहुत सारे अल्फाज आते हैं, कुछ है, चंद है, बाज है, ये सारे अल्फाज इसके लिए आते हैं गैर मुअय्यन के लिए। मैंने यहाँ 4 लिख दिया, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत ज़मीरी, सिफत आददी, और एक चीज है आपके पास जो रह गए, वो है सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी को हम समझते हैं कि सिफत मिक़दारी क्या, जिस तरह सिफत आददी में किसी भी चीज की आदद को बतलाया गया था, इसी तरह सिफत मिक़दारी में किसी भी चीज की मिक़दार को बतलाया जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 1 गिलास पानी, तो इसमें पानी मौसूफ हो गया, लेकिन ये जो मिक़दार जो बताई जा रही है कि ये पानी कितने हैं, तो 1 गिलास, ये 1 गिलास जो है एक मिक़दार है। इसी तरह हम कहते हैं दूध, लेकिन ये दूध कितने हैं, तो इसके लिए हम ले आते हैं 2 चमचा। अब दूध में हमने 2 चमचा का लफ्ज लगाया, हमने दूध में यह नहीं कहा कि दूध 2 है, इसलिए कि इससे पहले की वीडियो में मैंने पढ़ा चुका है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसे मैंने पढ़ाया था, उसमें से एक दूध का लफ्ज भी आया था जिसे आप गिन नहीं सकते थे। अब इसीलिए मुझे यहां पर इन चीजों के बतलाने के लिए मिक़दार की जरूरत पड़ती है। हम 2 दूध नहीं कह सकते थे, 4 पानी नहीं कह सकते हैं, 3 चाय नहीं कह सकते हैं, तो हम उन चीजों के लिए क्या लाते हैं, मिक़दार लाते हैं। अलबत्ता दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे लीटर के हिसाब से नाप तो सकते हैं, उसकी एक मिक़दार तो मुतय्यन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 5 लीटर दूध, तो ये 5 लीटर जो आ रहा है एक मिक़दार को बतला दिया है, इसलिए हम इसे सिफत मिक़दारी में रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सिफत मिक़दारी को आसान वाज़ेह लफ्ज में समझ जाएंगे। ये सिफत मिक़दारी इन तमाम सिफतों में सबसे आसान है। किसी भी चीज के मिक़दार को बताने वाले अल्फाज को सिफत मिक़दारी का नाम देते हैं। जिस तरह हमने चमचा में लफ्ज चमचा को सिफत मिक़दारी दिया है, इसी तरह पानी में मैंने गिलास को, 1 गिलास पानी में मैंने पानी को मौसूफ बना करके गिलास को सिफत बनाया था, तो ये गिलास का लफ्ज क्या हो गया, ये सिफत मिक़दारी है। तो आसान जुबान में हर एक का अब हम रिवीजन करवा देते हैं। सिफत ज़ाती का मतलब किसी भी जात के अंदर पाए जाने वाली अच्छाई या बुराई को बतलाए, किसी भी चीज की तरफ निस्बत करने वाली चीज को सिफत निस्बती, किसी ज़मीर के जरिए जब सिफत हो तो उसे हम सिफत ज़मीरी, सिफत आददी जो मुतय्यन तादाद को बतलाए उसे सिफत आददी मुअय्यन, और जो मुतय्यन चीज को ना बतलाए उसे सिफत आददी गैर मुअय्यन, और जो मिक़दार को बता दे उसे सिफत मिक़दारी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने हम जरूर एक वीडियो लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं।